Morning students. Today we will discuss pharmaceutical jurisprudence subject. आज हम DPCO के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर बोलते हैं, जो 1987 में हुआ था। और हम इसमें कौन क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे वो आपको बताता हूँ। इसकी डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, कैलकुलेशंस ऑफ के बारे में पढ़ेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रग्स आर द essential commodity for life. Prior to the drugs price control order, the manufacturer of drugs used to sell the drug of exorbitant prices, which in the interest of the public was to control the production, supply, distribution, etc. under section 3 of the Essential Commodity Act in 1955. In order to ensure an equitable distribution of essential bulk drugs and to fix the maximum retail price of drug formulations, the central government passed the Drug Price Control Order in 1987. It replaced the Drug Price Control Order in 1979. इसका मतलब क्या बनता है, जो मतलब हम दवा बनाते हैं, जैसे कोई कंपनी मेडिसिन तैयार कर रही है, कोई भी प्रोडक्ट ले लो, जैसे किसी कंपनी ने पैरासीटामोल दवाई तैयार करी और उसका मतलब जो खर्चा आया था, जो उसको मैक्सिमम प्राइस रखा जाता है, जैसे उस पर रख दिया 300 रुपये MRP, ठीक है। तो वो जो मतलब खर्च होता है, उस पर जो मतलब खर्चा है वो कम से कम अब 50 रुपीज़ आया है, तो वो उसको कंट्रोल करने के लिए वो मैक्सिमम अंडर DPCO एक्ट लागू किया गया सरकार द्वारा। उसको बोलते हैं हम DPCO। मतलब जैसे कि पेशेंट को कोई दिक्कत ना आए मेडिसिन लेने में, जैसे कि कोई भी मेडिसिन है उसमें उनको शेड्यूल में अंडर DPCO में डाल देते हैं, ये प्रोडक्ट अंडर DPCO में है। जैसे कि कई कंपनीज़ हैं, कई रिटेलर हैं, कई स्टॉकिस्ट हैं, उनको काफ़ी बड़े मार्जिन होते हैं। वो मार्जिन होने के कारण उनको पेशेंट को काफ़ी दिक्कत आती है, तो मतलब जो बाय नहीं कर सकते तो उसको अंडर DPC में प्रोडक्ट को डाल देते हैं। आगे चलते हैं। ऑन September 15, 1994 मॉडिफाइड ड्रग पॉलिसी वाज अनाउंस्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉलोइंग द स्लाइड फीचर्स और इसके abolition of industrial licensing for all bulk drug and there the public sector drugs involving use of recombinant and DNA technology and specific cell or tissue targeted formulation, reduction in the number of drug under the price control from the existing 142 drugs to 73 drugs। मतलब जो उन्होंने ड्रग्स 140 ड्रग्स या 73 ड्रग अंडर DPCO एक्ट में डाली हुई थी। पहली, हायर रेट ऑफ रिटर्न ऑफ फिक्सेशन प्राइस फॉर ड्रग अंडर द प्राइस कंट्रोल। हायर रेट रिटर्न इन द फिक्सेशन ऑफ प्राइस फॉर ड्रग अंडर द प्राइस कंट्रोल, मतलब जो रेट हाई होते हैं उनको कंट्रोल करती है। कंपनीज विद फॉरेन इक्विटी अप टू 51% टू बी एन 51% VNA par with wholly Indian companies. Automatic approval for foreign technology to be given. A uniform maximum allowable post-manufacturing expensive of 100 to be allowed in all cases of drug under the price control. National Drug Authority to be set up in separate act of Parliament to monitor standard practice in drug promotion and to clearly identify acceptable one and prohibit those found against the consumer interest। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे जिस सरकार ने ये एक्ट लागू कर दिया था, जैसे मान लो ये 348 ड्रग्स थी इन 1955 में, 2013 में DPCO आया था। उन्होंने मतलब जो 348 ड्रग्स हैं उनको एक फ़िक्स रेट कर दिया था भी, मतलब उनसे आगे आप बेच नहीं सकते, तो उसको मेंटेन करने के लिए सरकार ये एक्ट लाई थी। A National Pharmaceutical Pricing Authority NPPA to be set up of execute the price fixation at legal cases of 1% on production of drugs
and pharmaceutical proposed to the encouraging research and development in the drug sector. Ayurvedic, Unani Siddha, homeopathic and other traditional system of medicine to be promoted through the creation of separate department. Interministerial Coordination Committee under the chairmanship of Secretary Department and Chemical Monitoring Area the key concern. Okay students, hopefully we are understand now. In case of manufacturing of drug from the basic state and rate of return higher by 4% over the existing rate, which are 14% of 22% of capital employed to be allowed fixation price of the under drug price control. And the government keep to close watch on the prices of medicines and taken out the price control risk. The government take to appreciate measure including reclapping or price control at medicines price of the unreasonably. मतलब कोई भी मेडिसिन आप उसका जो DPCO का जो मेन रोल हो एक्ट जो लागू किया गया था उसका यही ऑब्जेक्टिव था या लक्ष्य था हमें उसे मतलब जो दवा है कोई भी दवा है उसको वो मैक्सिमम जो रिटेल प्राइस है उससे बढ़ाने का। जैसे शेड्यूल H1 में आ जाती हैं स्पेक्जिम आ गई अभी नाउ डेज़ में, उसका जो MRP है वो 99 ही रहेगा चाहे वो किसी भी कंपनी की हो। आगे है शेड्यूल्स, आगे है शेड्यूल फॉर्मुलेशन। शेड्यूल फॉर्मुलेशन शैल मीन फॉर्मुलेशन विद सेम स्ट्रेंथ एंड सेम डोजेज as the schedule. If doses are form of the strength schedule, formulation are changed in cases of scheduled drug. वो मतलब इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने कोई भी कैप्सूल ले लिया, मॉक्सी कैप्सूल ले लिया 250 मिलीग्राम, ठीक है, इसका 10 रुपये पत्ता रेट है, ओके, तो वो 10 रुपये पर स्टिक ही रेट होगा, तो वो होगा शेड्यूल फॉर्मुलेशन में। अगर वो 100 कम मिलीग्राम में बनेगा तो वो होगा नॉन शेड्यूल में बनाया जाएगा। जैसे मॉक्सी फॉर एग्जांपल मॉक्सी कैप्सूल 250 मिलीग्राम एंड कवर्ड अंडर द शेड्यूल्स एंड मॉक्सी टैबलेट्स आ जाती हैं 150 शेल नॉट बी कॉल्ड अ शेड्यूल्ड ड्रग्स। और फॉर एग्ज़ाम्पल शेड्यूल नॉन शेड्यूल का मैं आपको आसान भाषा में बता देता हूँ। जैसे मैं आपको बोलूँ एक गिलास दूध पी लीजिए, एक गिलास दूध ले लीजिए और वो हो गया शेड्यूल में। और नॉन शेड्यूल का मतलब क्या है, जैसे मैं बोलूँ आपको आधा गिलास पी लिए या चम्मच करके चम्मच में पी लिए तो वो होगा नॉन शेड्यूल फॉर्मुलेशन, ठीक है। होपफुली वी अंडरस्टैंड नाउ। आगे हम इसको रीड करते हैं। The first schedule list of bulk drug including salt ester and derivative, record national health program, tuberculosis and leprosy tablets, trachoma control of blindness, prevention dehydration under ORT, malaria and eradication and used to category formulation under the third schedule. And the second schedule list of bulk drug including the salts, expectorant derivatives and used to category of second formulation appearing in the third schedule. Category all formulation based on the bulk drug specified under the first schedule individually in combination with other bulk drugs. एंड सेकेंड फॉर्मुलेशन में आ जाएगा ऑल फॉर्मुलेशन बेस्ड ऑन द बल्क ड्रग सेकेंड शेड्यूल आइदर इंडिविजुअली इन द कॉम्बिनेशन विद अदर द एक्सपेक्ट फॉलोइंग्स आर सिंगल इंग्रेडिएंट्स होंगे और बेस्ड बल्क ड्रग स्पेसिफाइड ऑल सिंगल इंग्रेडिएंट्स containing individual vitamin specified in the third schedule sold either under the brand of the under generic name. फोर्थ शेड्यूल में वेरियस फॉर्म होगा एंड फिफ्थ में स्टेटमेंट मैक्सिमम प्री टैक्स और रिटर्न ऑन सेल टर्नओवर मैन्युफैक्चरर और इम्पोर्टर टू फॉर्मुलेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। प्राइस ऑफ नॉन शेड्यूल बल्क ड्रग्स। एवरी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नॉन शेड्यूल Every manufacturing of non-scheduled bulk drug shall submitted within 30 days of commencement of DPCO. List of all such bulk drug manufacturing by him government indicate the detail of government such a bulk drug in the prescribed form 1. And the manufacturer may revise the price after submitting detail of cost
The government may fix or revise the price of non-scheduled bulk drug. Manufacturer, importer, such stock drug shall be implements of price fix to revise within 15 days of the receipt of the drug. ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग शेड्यूल नॉन शेड्यूल का हमने प्राइजेज वो मतलब डिस्कस करिए। आगे इसकी कैलकुलेशन और प्राइस में देखेंगे। आगे इसकी कैलकुलेशन ऑफ रिटेल प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशन, मतलब उसका खर्चा कितना आता है, उस पर किस किस पर खर्चा आएगा वो हम उसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, उसका ये फार्मूला दिया गया। RP इज इक्वल टू MC.CC.+PM प्लस PC गुणा 1 + MAP इंटू 100 + ED, वेयर RP मीन्स रिटेल प्राइस होएगा। ओके, मतलब जो उसका लिखा होता है रिटेल प्राइस, और MC मटेरियल कॉस्ट एंड जो मटेरियल पर जो खर्चा आता है, इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ ड्रग एंड अदर फार्मास्यूटिकल एड्स, जो भी मतलब अदर फार्मास्यूटिकल एड इज यूज टू इंक्लूडिंग ओवरेजेस इफ एन प्लस प्रोसेस लो स्पेसिफाइड इन नॉर्म। CC का मतलब होता है कन्वर्जन कॉस्ट, वर्क आउट इन द अकॉर्डेंस विद द एस्टेब्लिश्ड पर, इसको बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। PM मीन्स कॉस्ट पैकिंग मटेरियल, जो मतलब उसको पैकिंग करने में, जैसे टैबलेट बन गई, टैबलेट बनाने के मतलब कौन सा स्टेप लगा, एल्यूमिनियम फॉयल लगाना है, ब्लिस्टर टाइप लगाना है, उस पर जो भी मतलब चार्जेस होंगे वो इसको बोलेंगे। PC में पैकिंग चार्ज वर्क आउट ऑन अकॉर्डेंस विद द एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर ऑफ कॉस्टिंग एंड मे बी फिक्स्ड एज अ नॉर्म। MAP means maximum allowable post manufacturing expenses including trade margin and shall not be exceed, मतलब जो मैक्सिमम जो पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग करने से खर्चा एक्सपेंसेस आते हैं उनको बोलते हैं MAP इंटू 100% करेंगे हम इसको 100% इन द केस ऑफ फॉर्मुलेशन कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 टू द थर्ड शेड्यूल। MAP means all cost incurred of manufacturer from the stage X factory cost retailing include the trade margin। आगे है ED का मतलब एक्साइज ड्यूटी, मतलब आपको पता है जो एक्साइज ड्यूटी लगती है और कोई भी प्रोडक्ट रेडी करने के बाद उस पर एक्साइज ड्यूटी जो भी लगेगा उसको ऐड करके जो खर्चा आएगा वो निकल जाएगा। इन द केस ऑफ इम्पोर्ट फॉर्मुलेशन, the landed cost of import drug inclusive of custom duty and clearing charges shall form the basis for fixing price along with such a margin to cover a selling and distributing an expense including interest and importer to profit which shall not exceed the landed cost। आगे है न्यू ड्रग एंड न्यू फॉर्मुलेशन, NLME बोलते हैं इसको, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। आप कोई भी ड्रग तैयार कर रहे हो, जैसे कि हमने पहले बोला था, मैंने एक शेड्यूल ड्रग है, एक नॉन शेड्यूल है। शेड्यूल ड्रग में जो मतलब फिक्स किया गया है अभी इतने मिलीग्राम है, जैसे पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम टैबलेट्स हैं, और नॉन शेड्यूल में उसको जो अपने दे दी मॉक्सिसिलिन 225 मिलीग्राम कर दिए, आधा कर दिए, तो उसको बोलते हैं नॉन शेड्यूल। और आगे हमने इसको न्यू ड्रग कैसे बनाना है, न्यू फॉर्मुलेशन अगर क्या बोलते हैं, फॉर्मुलेशन विद द सेम स्पेसिफाइड एंड डोजेज स्ट्रेंथ कंबाइंड विद द अनदर NLME फॉर्मुलेशन विद सेम स्पेसिफाइड डोजेज एंड स्ट्रेंथ। जैसे कि हमने एक मार्केट में चलता है सिक्लोपार, जो चलता है सिक्लोपार SP, वो सिक्लोपैरा और लगा के उसको शेड्यूल और नॉन शेड्यूल को मिलाकर एक नई ड्रग बन गई और उसको बोलते हैं न्यू ड्रग एंड न्यू फॉर्मुलेशन। जैसे दिए एग्जांपल, पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम टैबलेट्स इन शेड्यूल फॉर्मुलेशन, डिक्लोफेनेक 50 मिलीग्राम टैबलेट इन शेड्यूल फॉर्मुलेशन। एंड इसकी न्यू ड्रग बनानी है, पैरासीटामोल 500 ले ली, डिक्लो 50 मिलीग्राम ले ली और टैबलेट न्यू शेड्यूल हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, अभी भी मैंने निकाली नेट में, और ये आपको इसको स्क्रीनशॉट में ले लेना। फॉर्मुलेशन ऑफ चेंजिंग इट्स स्ट्रेंथ, एग्जांपल 1 पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम टैबलेट इन शेड्यूल ड्रग एंड
पैरासीटामोल 325 मिलीग्राम एंड टैबलेट्स इज़ अ न्यू ड्रग। NLME जो दी गई चेंजिंग डोजेज करेगी। डिक्लोफेनेक 50 ml टैबलेट शेड्यूल ड्रग एंड डिक्लोफेनेक ऑइंटमेंट इज़ अ न्यू ड्रग। आगे प्राइस टू द होलसेलर एंड रिटेलर। द मैन्युफैक्चरर इम्पोर्टर एंड डिस्ट्रीब्यूटर शैल सेल फ्रॉम द फॉर्मुलेशन टू होलसेलर टू अ प्राइस नॉट अ हायर दैन। जो मतलब होलसेलर को रेट पड़ रही है और रिटेलर को रेट पड़ रही है, उससे वो कम और जो मैक्सिमम रिटेल है उसका जो मार्जिन है उसमें देखेंगे। द रिटेल प्राइस 20% देयर इन केस ऑफ एथिकल ड्रग्स। जो मतलब एथिकल ड्रग्स हैं, जैसे एथिकल कंपनीज आती हैं, FDC होगी, सिप्ला होगी, ग्लेक्सो होगी, मतलब ऐसे बहुत ही कंपनी है जो एथिकल ब्रांड है, उसमें 20% मार्जिन है। और शेड्यूल C, C1 एंड H एंड B में रिटेल प्राइस मार्जिन 18% दोबारा इन केस ऑफ नॉन एथिकल ड्रग्स। अगर वो नॉन एथिकल ड्रग्स हैं तो उनको 18% मार्जिन। द मैन्युफैक्चरर इम्पोर्टर और डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर शैल बी फॉर्मुलेशन रिटेलर एट द प्राइस नॉट हायर देन। उससे वो ज़्यादा नहीं बेच सकता है जो उसको रिटेल दी। रिटेल प्राइस में वो 70% द केस ऑफ एथिकल ड्रग शेड्यूल C एंड G एंड H। The retail price of 15% in case of non-ethical drugs and drugs other unethical drugs. Manufacturer or distributor dealer not to refuse of sale of drugs. A manufacturer or distributor shall withhold from the sale of refuse to sell a dealer any drug without good and sufficient reasons. No dealer shall withhold from sale or refuse to sell any drug available with him to customer wanting to purchase such a drug. Penalties क्या होंगी? Any contravention of this order shall be punished accordance with the provision and essential of Commodities Act in 1955। आगे इसकी जो फर्स्ट शेड्यूल बल्क ड्रग्स में कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। कैटेगरी H में नेशनल टीवी एजुकेशन प्रोग्राम, स्टेप्टोमाइसिन आता है, आइसोजोनाइड आती है, रिसोल्ट है, थायोस्टिजिन आता है, थर्माबिटोल आता है, सोडियम PSA आता है, प्रेजिनीमाइड आता है, रिमिफिविसिन आता है। और नेशनल लेप्रोसी में जो लेप्रोसी प्रोग्राम में डेप्सोन, क्लोफोजीन, रिफिपापसिन और नेशनल ट्राइकोम कंट्रोल प्रोग्राम में दिया जाता है जो नेशनल प्रोग्राम ऑफ कंट्रोल ब्लाइंडनेस के साथ टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड, सोडियम सल्फेट्रामाइड और पिलोकार्पिन, हाइड्रोकोर्टिसोन, आइडोक्सिजीनिन एंड टेमोलोल और एसिटोजोमेलामाइड, अट्रोपाटीन एंड होमाट्रिपाटाइन। अगर डिहाइड्रेशन ORT के लिए, ओरल डिहाइड्रेशन के लिए नेशनल मलेरिया एजुकेशन प्रोग्राम क्लोरोक्विनोन, अमिडोक्विनोन एंड सल्फोमिथापिराजीन एंड पैरासीटामोल। एंड फिलेरिया के लिए डाइथाइल कार्बामिजीन। ये ड्रग्स ये आती हैं जो फर्स्ट शेड्यूल में आती हैं, जो बल्क ड्रग्स में। आगे ये मैंने कुछ इजी करके लिखा हुआ है, ये आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेना। जो प्राइसिंग दी गई है शेड्यूल फॉर्मुलेशन की स्टेप 1 में, जैसे उसको वो देख लें तो सम ऑफ प्राइसेस, जैसे एक उसको पूछ लें भाई तेरे को कितनी आती है, तेरे को कितनी आ रही है, उसको जो सम करके हम देख लेंगे PS + 1 + M × 100 और उसकी एवरेज निकले आएगी रिटेलर की। और स्ट्रेंथ ऑफ डोजेज फ्रॉम द मेडिसिन कैलकुलेटेड द स्टेप 1 एंड मार्जिन ऑफ रिटेलर इट्स वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ वी विल गो टू margin to retailer while fixing a selling price of the schedule formulation and a retail price of a new drug, and 16% of price retailer as margin retailer shall be allotted. The maximum retail price of schedule formulation shall be fixed by the manufacturer on the basis of selling price notified the government plus local
इसको मतलब जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है जो MRP लिखा होता है और सेलिंग प्राइस एंड लोकल टैक्स एज अप्लाइबल उसको निकल आएगा। उसको आपका रिटेल जो कॉस्ट पड़ती है उसको आपका इजीली निकल जाएगा। ये दिया है RP इजिकल टू MC प्लस, मैंने आपको करवा दिया MC क्या होता है, CC क्या होता है, PM क्या होता है, PC क्या होता है, इंटू 1 प्लस MAP क्या है एंड टू डिवाइडेड बाई 100 और ED क्या है। वेयर RP मीन्स रिटेल प्राइस, ये भी मैंने लिखा हुआ है सभी, उसको मैं स्क्रीनशॉट ले लेना और आपको इजी हो जाएगा। MC मतलब मीन्स ये मैंने आपको पहले ही थॉरली करा दिया था, मटेरियल कॉस्ट एंड CC कन्वर्जन कॉस्ट वर्कआउट इन द अकॉर्डेंस विद द स्टेबलाइज्ड प्रोसीजर। PM मीन्स कॉस्ट ऑफ मटेरियल, PS में PED। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू। अगर कोई आपको दिक्कत हो या आपको DPCO में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।